આગામી એક અઠવાડિયા પહેલાં લેવાઈ ગયેલ માર્ચ 2022ની MCQ ઓફલાઈન પેટર્નથી લેવાનારી લીધેલી એક્ઝામિનેશન જેનું પેપર CHNN 404 મેં ગઈકાલે 25 ક્વેશ્ચન સોલ્યુશનના રૂપમાં આપ સર્વે મિત્રોને આપ્યા છે પાર્ટ 1ના રૂપમાં. આજે આ બીજો વિડીયો વધુ 25 ક્વેશ્ચન સાથે પાર્ટ 2ના રૂપમાં CHNN 404ના બાકી રહી ગયેલા 25 મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશનનો આ વિડીયો હું આપ સર્વે મિત્રો સામે મૂકી રહ્યો છું. મિત્રો, આશા રાખું છું કે આપ સર્વે મિત્રો આપના સેલ્ફ ઇવેલ્યુશન માટે ખૂબ ખૂબ ઉપયોગમાં લેશો અને આવનારા દિવસોમાં પણ નવા આવનાર વિદ્યાર્થીઓને પણ આ પ્રશ્નો ખૂબ ખૂબ અગત્યના પુરવાર થશે એવી અપેક્ષા સાથે આ સોલ્યુશન આપ સર્વે મિત્રો માટે હું મૂકી રહ્યો છું. મિત્રો, આજના આ વિડીયોનો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ધ સિગ્નલ ઓબ્ઝર્વડ ઇન મોઝબાર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી મેઇનલી ડિપેન્ડ્સ ઓન. મોઝબાર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીમાં જે સિગ્નલ આપણે ઓબ્ઝર્વ થાય છે એ સિગ્નલ્સ મેઇનલી કયા ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી, ન્યુક્લિયર ડેન્સિટી, સિમેટ્રી ઓફ ધી કમ્પાઉન્ડ કે ઇજેક્શન? તો મિત્રો, સ્વાભાવિકપણે જ કરેક્ટ ઓપ્શન છે સી, સિમેટ્રી ઓફ ધી કમ્પાઉન્ડ, જે અગત્યનું એક ફેક્ટર મોઝબાર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીના સિગ્નલને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટેનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 27, ધ ઓર્ડર H ઓફ ધી C2V પોઈન્ટ ગ્રુપ. મિત્રો, C2V પોઈન્ટ ગ્રુપ એટલે H2O જેવા મોલેક્યુલમાં બિંદુ સમૂહ C2V જોવા મળે છે. તો એવા C2V પોઈન્ટ ગ્રુપ ધરાવતા તમામ અણુઓમાં C2V પોઈન્ટ ગ્રુપનું કેરેક્ટર ટેબલ છે, એમાં એનો ઓર્ડર કેટલો છે? H. તો એનું કેરેક્ટર ટેબલ જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે એનો H 3 છે, 4 છે, 6 છે કે 12 છે. ઇઝ ઇટ 3, 4, 6 or 12? So the order H of the C2V point group is, if we see this character table of point group C2V, in this character you will find the E, C2Z, sigma VXZ, sigma VYZ. So there are 4 classes and number of classes is equivalent to number of order. તો order H ની કિંમત it will be equivalent to number of symmetry classes in that particular symmetry point group. ઓકે, તો અહીંયા જેટલી સિમેટ્રી ઓપરેશનના જેટલા ક્લાસીસ છે 1, 2, 3 અને 4, સિમિલરલી સેમ નંબર ઓફ ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન એન્ડ સેમ નંબર ઓફ H. સો ઈમાં 1E, 1C2, 1 sigma V1 and 1 sigma V2. So it will be 4. So order H is equal to 4. Correct option છે B, 4. Then question number 28, due to which effect मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज. मित्रों, मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज होने का मेन जो रीज़न है वो क्या है? क्रॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट और मोज़ियर इफेक्ट. तो मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, डॉपलर इफेक्ट. Then question number 29, the absorption of gamma rays in मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी depends on. तो मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो गामा रेज है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, न्यूक्लियर डेंसिटी, सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड और इजेक्शन. तो इस तरह के जो ऑप्शन दिए थे उसमें बी जो है न्यूक्लियर डेंसिटी, उसके ऊपर गामा रेज का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन क्वेश्चन नंबर 30, द मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉज गिवन बाय. कौन सा साइंटिस्ट था जिसने मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें प्रदान की है? तो इज इट न्यूटन, इट वॉज आइंस्टाइन, रुडोल्फ और रुदरफोर्ड. तो दोस्तों, बहुत स्वाभाविक सी बात है, मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बेस्ड ऑन मोज़बार इफेक्ट. दिस इफेक्ट ऑफ डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ मोज़बार. सो इसका नाम मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी रखा गया है रुडोल्फ मोज़बार के नाम के ऊपर. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रुडोल्फ. क्वेश्चन नंबर 31, द मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली डील्स
विथ विच ऑफ द मेटल्स, कौन सी मेटल के साथ ये डील करती है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि वो 57 Fe के ऊपर, 119 Sn के ऊपर, 121 Sb के ऊपर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, Fe, Sn और Sb तीनों के साथ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली डील्स विथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 32, H2O हैज़ टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस। दोस्तों H2O का जो फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस है वो इज इट 4, 3, 6 या फिर 5? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा H2O इज़ नॉन लीनियर मोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल नॉन लीनियर होता है उसके लिए नंबर ऑफ फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस इज़ 3n-6, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ पर H2O में 3, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 3 एटम है, 3/3, इट विल 9-6, 3n-6 फॉर नॉन लीनियर, ओके, देन 3/3 -6 इट विल 3। तो यहाँ पर 3 फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस मिलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3। देन क्वेश्चन नंबर 33, the molecule shows IR and Raman active signals and bends respectively. Raman, IR and Raman active signals and bends respectively in their corresponding spectra, which indicate the absence of symmetry operation. कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन है जिसकी एब्सेंस में हमें IR और रामन एक्टिव जो सिग्नल्स है एंड बैंड है वो रिस्पेक्टिवली मिलते हैं? इज इट Cn, Sn, सिग्मा और I? तो ये प्रिंसिपल रोटेशन अक्स है, Sn इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस है, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन, या फिर इन्वर्जन सेंटर I, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री I। तो इसमें से कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? आई मीन इन द एब्सेंस ऑफ विच सिमेट्री ऑपरेशंस वी कैन शोज IR एंड रामन एक्टिव सिग्नल्स एंड बैंड। तो जिस मॉलिक्यूल में ये I नहीं होता है, जिसमें ये इन्वर्जन या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल्स शोज IR एंड रामन एक्टिव सिग्नल्स एंड बैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is considered to be ionizing radiation? विजिबल लाइट को हम आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, रेडियो वेव को, एक्सरेज को, या फिर माइक्रोवेव को। माइक्रोवेव्स दोस्तों जो है वो कंसिडर्ड टू बी आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, माइक्रोवेव्स आर कंसिडर्ड टू बी आयोनाइजिंग रेडिएशंस। Then question number 35, spectroscopy is the study of, स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्टडी है, मैटर का स्टडी है, या फिर इंट्रैक्शन ऑफ EMR विथ मैटर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर का है, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों बहुत जाहिर सी बात है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। दोस्तों लीनियर मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग जो वाइब्रेशंस की डिटरमाइन करने की जो फॉर्मूला है, इसमें से कौन सी करेक्ट है? इज इट 2n-3 प्लस n-2, n+4 प्लस 2n-1, देन 2n-4 प्लस n-1, या फिर n-3 2n-2। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट जो फॉर्मूला है वो C है, C यानी कि 2n-4 प्लस n-1 टू कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन इन molecule. Okay, so correct option is C. Then question number 37, which color of visible light
हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जो विजिबल स्पेक्ट्रा है उसमें आप जानते हैं जानी वाली पीनाला है ना, पर्पल कलर से लेके रेड कलर तक का जो पूरा विजिबल स्पेक्ट्रा है अलग अलग कलर्स के, ये सारा विजिबल लाइट का जो पूरा स्पेक्ट्रा है यानी कि विजिबल रीजन में, उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? इज़ इट ब्लू, वायोलेट, रेड या फिर येलो? तो यहाँ पर मैं पूरा आपको विजिबल स्पेक्ट्रा दिखाना चाहूँगा दोस्तों। दिस इज़ गामा रेज वाला, फिर एक्सरा रेज वाला, फिर यूवी का, यूवी के तुरंत बाद और आईआर के पहले का जो पार्ट है वो विजिबल लाइट का पार्ट होता है, जिसमें ये पर्पल कलर से लेके जानी, नीलो, फिर ग्रीन, देन येलो है ना, देन ऑरेंज एंड एट लास्ट रेड कलर। तो यहाँ जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विजिबल रीजन की है, तो उसमें रेड कलर है, यानी कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट होती है विजिबल रीजन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। दोस्तों लीनियर मॉलिक्यूल जो होता है CO2, H2, O2, N2, F2, HCl, इस तरह के जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उसके फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस डिटरमाइन करने का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो 3n है, 3n-6, 3n-4 या फिर 3n-5। तो दोस्तों फंडामेंटल जो मोलिकुलर वाइब्रेशंस है उसमें आप देख सकते हैं ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल, फिर वाइब्रेशनल। यहाँ वाइब्रेशनल की आप यहाँ रो में देखेंगे तो लीनियर के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर के बारे में 3n-6 मोलिकुलर वाइब्रेशंस यहाँ मिलते हैं। तो ये फॉर डिटरमाइनिंग दी फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, उसके अंदर 3n-5 इज़ द फंडा ऑफ या फिर करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द डिटरमाइनिंग वाइब्रेशंस इन लीनियर मॉलिक्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज D, 3n-5. Then question number 39, the constant value for one molecule of CnZ symmetry operation। दोस्तों कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर Cn यानी कि प्रिंसिपल रोटेशन अक्स, जिसको हम Z एक्सिस बोलते हैं, ये सिमेट्री ऑपरेशंस जो होता है उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है? 2 cos थीटा, यहाँ थीटा लिखना मैं भूल गया हूँ लेकिन आप बोलिएगा 2 cos थीटा प्लस 1, cos थीटा माइनस 1, cos थीटा प्लस 1। थीटा मैंने गलती से यहाँ टाइप नहीं किया है लेकिन आपको बोलना है, या फिर 2 cos थीटा माइनस 1। सो यहाँ पर मैं आपको उसका डिटर्मिनेशन है मैट्रिक्स वो ही बताना चाहूँगा। कोई भी Cn के बारे में जो 3/3 का मैट्रिक्स होता है तो वो मैट्रिक्स होता है cos थीटा 0 0 0, cos थीटा 0 0 0 1, और उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है यानी कि जिसको हम कैरेक्टर वैल्यू बोलते हैं, काय वैल्यू बोलते हैं, दैट इज़ द समेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द डायगोनल पोजीशन। सो डायगोनल पोजीशन के ऊपर cos थीटा प्लस 1 यानी कि 2 cos थीटा प्लस 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज A, 2 cos थीटा प्लस 1। करेक्ट ऑप्शन A। देन क्वेश्चन नंबर 40, द क्लासेस ऑफ D3 पॉइंट ग्रुप, D3H पॉइंट ग्रुप, दैट इज, तो उसमें कौन सी सिमेट्री ऑपरेशंस आती है? E, 2C3, 3C2, सिग्मा H, 2S3, 3 सिग्मा V। तो इस तरह से ये D3H पॉइंट ग्रुप के सारे जो क्लासेस है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यहाँ पर कितना ऑर्डर बनेगा? 4, 3, 6 या फिर 12। तो यहाँ इसके समीशन से भी हमें पता चलता है, और हम D3H पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल देखेंगे तो भी पता चलेगा। यहाँ देख सकते हैं E की जो ऑपरेशन नंबर ऑफ E है वो 1 है, यहाँ नंबर ऑफ C3 कितनी है? 2, ये क्लास में C2 कितनी है? 3, सिग्मा H 1, S3 कितनी है? 2,
और सिग्मा वी कितने हैं 3। तो ये सारी जो सिमेट्री ऑपरेशंस है अलग अलग क्लास में उसका समीशन हम लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 यानी कि एच की वैल्यू हमें मिलेगी 12। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। D3H पॉइंट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 12 है 12। देन क्वेश्चन नंबर 41 द PTCl4 शोज फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस। मित्रों फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस की गिनती करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की गिनती करने के लिए, तो उसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के जरिए हम 3n-6 यानी कि PTCl4 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका जो करेक्ट फॉर्मूला है गिनती करने का वो है 3n-6। तो PTCl4 में 4 Cl लिगेंड है, देर आर 4 Cl and 1 PT. So 5 atoms are there in PTCl4. Then we will find out 3 × 5 - 6. तो 15 में से 6 जाएंगे तो रिजल्ट विल बी 9। सो PTCl4 के फंडामेंटल मोलिकुलर वाइब्रेशंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी 9। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 42 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज, ऑसिलेशन होता है, उसका चेंज होता है इन अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वेव का जो प्रोपेगेशन है उसके डायरेक्शन है उसको परपेंडिकुलर होते हुए ये वेव जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 44 43 यहाँ रह गया लगता है। न्यूक्लियर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग मेनली अकर्स ड्यू टू स्पिन I is greater than 3/2, asymmetric charge distribution, या फिर बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन जो है यह नंबर आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको याद है उस हिसाब से नंबर की गिनती कीजिएगा। यहाँ पर मैंने गलती से, या फिर हो सकता है 43 वाला रह गया हो, तो 44 क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा है, तो इस क्वेश्चन में न्यूक्लियर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग मेनली अकर्स, किस कारण से वो अकरिंग होते हैं? स्पिन I इज़ ग्रेटर देन 3/2, एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोथ, या फिर नन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ। स्पिन I इज़ ग्रेटर देन 3/2 एंड एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ A एंड B। देन क्वेश्चन नंबर 45 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स थ्रू वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं? 18,600 मीटर पर सेकंड, 125 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 10,000 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ मैंने हिंट बताया, उसमें लिखा है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड which is about 3.0 × 10⁸ meters per second through a vacuum. So correct option is C, 3 × 10⁸. Then question number 46 S orbitals are identified from which section of character table? First section, second section, थर्ड सेक्शन, या फिर फिफ्थ सेक्शन। दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर टेबल में आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ द सेक्शन 1 जिसमें हम पॉइंट ग्रुप लिखते हैं, दिस इज़ द सेक्शन 2 जिसमें हम क्लासेस ऑफ सिमेट्री लिखते हैं, यानी कि सिमेट्री ऑपरेशन का क्रम और क्लासेस से हम बताया है। देन सेक्शन 3 जिसमें हम मूलिकन सिम्बॉल्स ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आते हैं। देन सेक्शन 4 जिसमें हम सारे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर अलग अलग क्लासेस में कैरेक्टर्स लिखते हैं। सेक्शन नंबर 5 जिसमें हम IR एक्टिव जो पार्ट है उसकी जो रोटेशनल वेक्टर्स की वैल्यू होती है या फिर ट्रांसलेशनल वेक्टर की वैल्यू होती है, ये सारे हम यहाँ पर लिखते हैं। एंड इट इज़ सेक्शन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए ये बाय प्रोडक्ट्स लिखिए जिसमें dxy, dxz, dyz
या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एज पर माई अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्स, आंसर विल बी 6 सेक्शन। बट कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों कभी कभी कंबाइंड गिनती भी करते हैं, इसीलिए एस ऑर्बिटल या फिर पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल का हम कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 6 नहीं लिखा है, तो हम सेक्शन 5 के जरिए भी एस ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 5th। देन क्वेश्चन नंबर 47, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली डील्स विथ, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके साथ डील करती है? न्यूक्लियर स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, व्हेन द इंफ्रारेड लाइट फ्रीक्वेंसी मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड वाइब्रेशन इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूलर के अंदर बॉन्ड्स जो होते हैं उस बॉन्ड का वाइब्रेशन जो होता है, जिसको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है कौन सा? इंफ्रारेड लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पर पीक इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्पेक्ट्रम, सो इट इज डायरेक्टली डील्स विद द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 48, न्यूक्लियस विथ स्पिन आई स्प्लिट इनटू स्टेट्स, कितनी स्टेट्स में वो स्प्लिट होती है, या फिर गिनती करने के लिए हम कितनी यहाँ पर स्टेट्स जो है उसकी गिनती हम लिख सकते हैं दोस्तों। 2i + 1, i + 1, i + 3/2 या फिर 2i + 3। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, द नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इज 2i + 1, where I is equal to spin quantum number. So it is 2i + 1. So correct option in this question is A, 2i + 1. Then question number 49, which complex shows significant quadruple splitting? Significant quadruple splitting कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखाता है? K4FeCN6, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यानी कि Na2FeCN5NO, बोथ द कॉम्प्लेक्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, जो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इट कैन शो सिग्निफिकेंट क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग इन द गिवन ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन विच केस क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नॉट अराइज? क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग अराइज नहीं होता है ऑन द कॉम्प्लेक्स विथ ऑल सेम लिगेंड्स, D4 सिमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, C4V सिमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, या फिर OH सिमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ डिफरेंट लिगेंड्स, यानी कि सारे लिगेंड्स अलग अलग होते हैं जिसमें OH सिमेट्री जैसी दिखती है। तो इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कैन नॉट अराइज? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑन कॉम्प्लेक्स विथ ऑल सेम लिगेंड्स, जिसमें सारे लिगेंड्स सेम होते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर का क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग विल नॉट अराइज। तो दोस्तों इसी तरह से बाकी बचे सारे क्वेश्चंस मैंने ये 404 के क्वेश्चन पेपर के मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। आशा करता हूँ थोड़ी थोड़ी गलतियों के साथ भी जितने भी मैंने ट्राई किया है उतने सारे क्वेश्चंस बहुत सही आंसर के साथ बताने का प्रयास किया है, उसका एक्सप्लेनेशन करने का भी प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी मेरे लास्ट वीडियो की तरह आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए या फिर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट गेन करेंगे। इसी कामना के साथ ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर योर MSc सेमेस्टर 2। धन्यवाद।